Dear students, this is third video of class 6 social science of lesson 1। प्रिय विद्यार्थियों, यह कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 का तीसरा वीडियो है। Today we will study of class 6 social science third part of lesson 1। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। In this chapter we will read about locating places on the earth। इस अध्याय में हम पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के बारे में पढ़ेंगे। Draw a simple map of a school's playground का अर्थ है एक स्कूल के खेल के मैदान का एक सरल नक्शा बनाएं। Let us assume it is a rectangle, 40 meters in length and 30 meters in width। मान लीजिए कि ये एक आयत है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter equals 10 meters। इसे 1 centimeter equals 10 मीटर के पैमाने पर अपने रूलर से सटीक रूप से बनाएं। Now measure the diagonal of the rectangle। How many centimeters do you get? अब आयत के विकर्ण को मापें। आपको कितने सेंटीमीटर मिलते हैं? Using the scale, calculate the real length of the playground's diagonal in meters। पैमाने का उपयोग करके खेल के मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई मीटर में ज्ञात करें। Let us return to the 4 arrows at the top right of the small city's map। They point to 4 directions। आइए हम छोटे शहर के नक्शे के ऊपर दाईं ओर 4 तीरों पर लौटते हैं। They point to 4 directions which are north at the top and moving clockwise, east, south and west। वे 4 दिशाओं की ओर इशारा करते हैं जो शीर्ष पर उत्तर हैं और दक्षिणावर्त चलते हुए पूर्व, दक्षिण और पश्चिम हैं। These are called the cardinal directions, also cardinal points। इन्हें कार्डिनल दिशाएं भी कहा जाता है, cardinal points भी। Other than these, intermediate directions are also used: northeast NE, southeast SE, southwest SW and northwest northwest। इनके अलावा मध्यवर्ती दिशाओं का भी उपयोग किया जाता है: पूर्वोत्तर NE, दक्षिण पूर्व SE, दक्षिण पश्चिम SW और उत्तर पश्चिम NW। Most maps simply have an arrow marked with the letter N, which points to the north direction। अधिकांश नक्शों पर केवल N अक्षर से चिन्हित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। Let's consider the map of the small city again। इसका अर्थ है छोटे शहर के मानचित्र पर फिर से विचार करें। Identify the correct and incorrect statements in the list below। है नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान करें। अब सूची में पहला कथन है The market is north of the hospital। इसका अर्थ है बाजार अस्पताल के उत्तर में है। The museum is southeast of the bank। इसका अर्थ है संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। The railway station is northwest of the hospital। इसका अर्थ है रेलवे स्टेशन अस्पताल के उत्तर पश्चिम में है। The lake is northwest of the apartment blocks। इसका अर्थ है झील अपार्टमेंट ब्लॉकों के उत्तर पश्चिम में है। Taking your school as the starting point, do you know approximately in which cardinal direction your home is located? Discuss with your teacher and your parents। इसका अर्थ है अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानकर क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस मुख्य दिशा में स्थित है? अपने शिक्षक और अपने माता-पिता के साथ चर्चा करें। Symbols are another important component of maps। इसका हिंदी में अनुवाद है प्रतीक नक्शों का एक और महत्वपूर्ण घटक हैं। Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all। इसका मतलब है हमारे नक्शे में वास्तविक इमारतों और कुछ अन्य तत्वों के छोटे चित्र हैं, लेकिन बड़े शहर या देश के नक्शे पर उन सभी को बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। Instead, a symbol is used to represent these features। Symbols for different kinds of buildings, for instance, a railway station, a school, a post office, for roads and railway lines, and for natural elements such as a river, a pond, or a forest। In that way, numerous details can be shown in the limited space available on a map। का हिंदी में अर्थ है इसके बजाय इन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की इमारतों के लिए प्रतीक, उदाहरण के लिए एक रेलवे स्टेशन, एक स्कूल, एक डाकघर, सड़कों और रेलवे लाइनों के लिए, और प्राकृतिक तत्वों जैसे नदी, तालाब या जंगल के लिए। इस तरह नक्शे पर उपलब्ध सीमित स्थान में कई विवरण दिखाए जा सकते हैं। To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols। Different countries use different sets of symbols। का हिंदी में अनुवाद है नक्शों को विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं द्वारा आसानी से समझने के लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीकों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीकों के विभिन्न सेट का उपयोग करते हैं। The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India or parts of India।
A small selection of them is shown in Fig 1.2 on page 12. का हिंदी में अनुवाद है, भारतीय सर्वेक्षण एक सरकारी निकाय ने भारत के मानचित्रों या भारत के कुछ हिस्सों के लिए प्रतीकों का एक सेट तय किया है। उनमें से एक छोटा सा चयन पृष्ठ 12 पर चित्र 1.2 में दिखाया गया है। इसके बाद let's draw a rough map of your locality or your village, including your home, school, and a few other important landmarks. Show the cardinal directions and use a few of the symbols shown in Fig 1.2 on page 12 to mark some important features. का हिंदी में अनुवाद है, अपने घर, स्कूल और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों सहित अपने इलाके या अपने गांव का एक कच्चा नक्शा बनाएं। मुख्य दिशाएं दिखाएं और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को चिन्हित करने के लिए पृष्ठ 12 पर चित्र 1.2 में दिखाए गए कुछ प्रतीकों का उपयोग करें। सबसे ऊपर रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन के लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। ये सभी प्रतीक नक्शे पर विभिन्न स्थानों और विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे लाइनें, सड़कें, नदियां और इमारतें। आप रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं। नक्शे में ब्रॉड गेज को एक मोटी रेखा और उसके बाद एक खाली आयत और एक भरी हुई आयत द्वारा दर्शाया जाता है। मीटर गेज को एक पतली रेखा और उसके बाद छोटी छोटी रेखाओं की एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है। और रेलवे स्टेशन को एक वर्ग के रूप में दर्शाया जाता है जिसके अंदर RS लिखा होता है। धातु की सड़कों को दो समानांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि गैर धातु की सड़कों को दो छोटी समानांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला सीमाओं को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है जिसके बाद अलग अलग लंबाई के बिंदु होते हैं। पानी से जुड़ी विशेषताओं में नदी को एक लहरदार रेखा के रूप में दर्शाया जाता है, कुएं को एक वृत्त के रूप में, झील को अनियमित आकार के रूप में, नहर को दो समानांतर रेखाओं के रूप में और पुल को दो समानांतर रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है जिनके सिरों पर छोटी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ठीक है। मंदिर को एक आयत के रूप में दर्शाया जाता है जिसके ऊपर एक छोटी मीनार होती है। चर्च को एक क्रॉस के रूप में दर्शाया जाता है। मस्जिद को एक गुंबद और मीनार के रूप में दर्शाया जाता है। छतरी को एक छोटे गुंबद के रूप में दर्शाया जाता है। जरूर, पोस्ट ऑफिस को PO, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस को PTO और पुलिस स्टेशन को PS के रूप में दर्शाया जाता है। एक बस्ती को आयतों के समूह के रूप में दर्शाया जाता है और कब्रिस्तान को अर्धचंद्राकार आकार की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है। पेड़ों को हरे वृत्त के रूप में दर्शाया जाता है जिसके नीचे एक छोटा भूरा आयत होता है और घास को हरी रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है।